بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری۔ تو جناب علی، یہ چینل بھی آپ ہی دوستوں کا ہے، آپ کی محبت کی نظر ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ چینل بھی آپ کی کاوشوں پہ پورا ہی اترے گا۔ ناظرین، اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو منتقل کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے یہ بات بھی آپ کو پسند آئے گی اور امید ہے کہ آپ گاہے بگاہے اس پہ تشریح بھی کریں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو ملاتا جاتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو قانون دان، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ جو ابھی پاک بھارت کی جنگ ہوئی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ کہ اس کی جیت، اس کی فتح جو ہمارے پاکستان کو نصیب ہوئی ہے، ہمارے جوانوں کو خوش نصیب بھی ہے کہ یہ جنگ طویل عرصہ سے وہ شرارتیں ہو رہی تھیں لیکن ان کا بھرپور جواب دیا اور الحمدللہ اور فتح حاصل ہوئی۔ تو ناظرین، اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم سنتے ہیں سید تنویر بخاری صاحب سے کہ آیا فلسطین کے حوالے سے بتائیے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں بخاری صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ سیاستدان بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ یہ سب معاملات کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یا کس طرح سوچ رکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کے اندر کوئی ایسی لابی ہے کہ جو آپ اتنی گہری سوچ رکھتے ہوئے بھی، اور یہ فلسطین کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ صابر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کو باطل پر غالب آنا ہوتا ہے اور حق نے باطل کو شکست دینا ہوتی ہے۔ میں ایک سینٹنس بولوں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فلسطین میں کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیں ہر عمر کے لوگ جو سن رہے ہیں، میرے بہن بھائی، بچے اور بزرگ، کہ سچائی اور حق کا ایک ذرہ جھوٹ اور باطل کے پہاڑ سے کہیں بڑا اور طاقتور ہوتا ہے۔ فلسطین جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو عرصہ دراز سے کم و بیش کوئی قریباً 76 سال سے وہ اس ظلم و ستم کا شکار ہیں جو کہ یہودیوں نے، صہیونی طاقتوں نے اسرائیل کے روپ میں ان پر مسلط کی ہوئی ہے۔ لیکن ہر چیز کا اختتام ہونا ہوتا ہے اور اس کا فریم ورک جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ 2023 اکتوبر میں جو جنگ شروع ہوئی، وہ جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کی، فلسطین کی جو تنظیم تھی حماس، اس نے طوفان الاقصی کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا اور آغاز میں ہی یہ اسرائیل کے قریباً 200 سے زیادہ بڑی اہم شخصیات کو وہ یرغمال بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جنگ چھڑ گئی، پھر پوری عالمی دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل جو کہ ظلم و ستم کے پہاڑ پہلے بھی توڑ رہا تھا، اس نے اپنی ہر طاقت آزمائی لیکن نہ تو حماس کے خلاف ان کو کامیابی ہوئی، نہ حماس کے لوگوں نے ہتھیار ڈالے اور نہ ہی جو ہے اس کے ساتھ حزب اللہ تھا، حزب اللہ نے کوئی ہتھیار ڈالے۔ اور ہوا یہ کہ آخر کار اس کو کچھ 14 مہینے کے بعد مجبوراً جنگ بندی کا معاہدہ کرنا پڑا۔ لیکن یہودی جو ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہودی وعدے پہ قائم نہیں رہتا اور یہودیوں کو اپنے وعدے سے پھرنا ہوتا ہے، ان کی فطرت ہے۔ پھر جنگ بندی سے منکر ہو گئے اور انہوں نے پہلے ہی جو غزہ دراصل یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا فلسطین جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ غزہ پٹی ہے جو کہ 10 کلومیٹر چوڑی اور 65 کلومیٹر لمبی ہے، اس میں قریباً 22 لاکھ مسلمان خواتین و حضرات رہتے ہیں۔ لیکن 2004 سے لے کر
ये 2024 और अब तक उस गज़ा को जो है एक कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, ये इन सहूनी ताकतों ने, इसराइल ने चारों तरफ से बंद किया हुआ है और उनको कैदी बनाया हुआ था। और ये हमास ने बिल्कुल 2023 में इसके खिलाफ बगावत कर दी और उसका नतीजा क्या निकला कि इसराइल ने गज़ा को चटियल मैदान बना दिया। उन्होंने बिल्कुल नस्ल कुशी की फ़लस्तीनियों की, उन्होंने ना अस्पताल छोड़े, ना स्कूल छोड़े, ना ही उन्होंने ये गैर मुल्की UNO के मदद करने वाले रज़ाकार थे उनको छोड़ा, ना सहाफ़ियों को छोड़ा। उन्होंने तबाही मचा दी। और इस दौरान ये अमेरिका में रजीम चेंज हुई, ये हुकूमत बदली, जो बाइडन गया और ये ट्रंप सदर बन के आ गया। ट्रंप ने भी बिल्कुल अपनी अमेरिकन पॉलिसी ये इसराइल का साथ देते हुए, ये अब मैं बात को एंड अप कर रहा हूँ क्या होने जा रहा है। अब आपने इस पर गौर करना है कि ट्रंप ने खुल्लम खुला ऐलान कर दिया कि इसराइल के पास बिल्कुल फ्री हैंड है, ये चटिल मैदान गज़ा जो है इस पर तुम कब्जा कर लो। फौजें फिर घुस गईं और इसराइल ने वहाँ फिर ये यकतरफा जंग, बमबारी और वहाँ जुल्म सितम शुरू कर दिए, लेकिन कब्ज़ा फिर नहीं हो सका। यहाँ एक बात समझनी होगी आपको कि ट्रंप ने तो कह दिया कि गज़ा पर कब्ज़ा कर लो और गज़ा के लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगरचे कि ट्रंप के इस ये बयानिए को लोगों ने तस्लीम ना किया और ये बुरी तरह पिटा। नतीजा क्या निकला कि फ़लस्तीन वालों ने वहाँ से, गज़ा वालों ने अपनी सरजमीन नहीं छोड़ी और कब्ज़ा वो कर नहीं सका इसराइल। अब इन बिटवीन ये यहूदी बहुत चालाक हैं और इसके साथ लगा हुआ अमेरिका, उसका जो बाप दादा है वो बहुत चालाक है। उन्होंने नज़र रखी कि ये सारी जंग जो लंबी हो रही है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है, हमास के पीछे ईरान है और ये हूसी जो हैं यमन के, उनके पीछे ईरान है। चलो ईरान से लड़के देखते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने आगे फैसला किया कि ईरान के साथ साथ किसकी है, पाकिस्तान की। पाकिस्तान एटमी ताकत है, उससे उनको ख़तरा महसूस हुआ। उन्होंने इनाम उठा के हालिया जंग छेड़ दी और ये हमारे कदीम और घटिया दुश्मन को हमारे गले पड़वा दिया और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़ को फतह हुई और ये इंडिया 4 घंटे ना निकाल सका। अब इंडिया को शिकस्त नहीं हुई, मेरे नज़दीक 4 ममालिक को शिकस्त हुई। वो कैसे? वो है रशिया, वो है आपका इसराइल और वो है ये आपका इंडिया और फ्रांस। इसराइल को कैसे हुई कि उन्होंने अपने ड्रोन, जो कि इंडिया के पास 150 ड्रोन बताए जाते थे जो 25 किलो वजनी मवाद और बम उठा के ला सकता था, 96 ड्रोन उन्होंने हमारे यहाँ भेज दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर फौज ने और स्पेशली एयरफोर्स ने एक ड्रोन भी ज़मीन पर ना गिरने दिया और फ़ज़ा में मार दिए। इसराइल की शिकस्त। फ्रांस ने अपना वो त्यारा जो कि आज तक वो कह रहे थे नाकाबिल शिकस्त है, वो दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने 3 राफेल त्यारे तबाह कर दिए। फ्रांस की शिकस्त। उसके बाद आगे चले कि रशिया ने उसे S-400 निज़ाम दिया था, सिस्टम जो कि एरो यानी एयर रेड को रोकता है और इसी तरह जैसे इसराइल के पास आयरन डोम है, वो तबाह हुआ। इस तरह रशिया की शिकस्त। इंडिया की खुद शिकस्त हो गई, उनके कई बेस उड़ गए, उनका बेड़ा ही गर्क हो गया। लिहाजा उससे इसराइल ने और अमेरिका ने भी सबक लिया। अमेरिका फ़ौरन आगे बढ़ा और जंग रोक दी गई। अब अमेरिका के सदर ने, अब मैं अपने फाइनल नुक्ते तक पहुँच रहा हूँ कि फ़लस्तीन में क्या होने जा रहा है। अब उसने ऐलान कर दिया है कि मैं ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसी मई के 18 या 20 तारीख को, ये अरब समिट हो रही है, अरब ममालिक के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस हो रही है इराक़ में। तो इराक़ में ना सिर्फ अकेला ये ट्रंप आएगा बल्कि उसने अपनी इंतज़ामिया, जिसमें एक इलॉन मस्क का नाम है, उसके बाद गूगल का एक मालिक है उसका नाम है कोई, वो भी साथ होगा और उसकी इंतज़ामिया होगी। और उसने ऐलान कर दिया है कि मैं फ़लस्तीन का कोई हल निकालूंगा और एक ऐलान करने वाला हूँ। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि पहले हल उसने निकाला कि फ़लस्तीन यानी गज़ा में से लोगों को जबरन निकाल दो और कब्ज़ा कर लो।
वो तो कामयाब नहीं हुआ। अब दूसरा हल क्या हो सकता है? दूसरा हल एक ही बचा है कि इसराइल जो है वो उसका कब्ज़ा छोड़ेगा और फ़लस्तीन को बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार करना पड़ेगा। इस हवाले से मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जून 2025 इंशाअल्लाह दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के फजल से ये खबर सुनेंगे कि फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद होने जा रहा है। और दूसरी खबर मैं आपको बता दूँ, इंशाअल्लाह जल्दी आप सुनेंगे कि यही जो ट्रंप है पाकिस्तान और भारत दरमियान, उसने कह दिया मैं सालसी करने जा रहा हूँ और यहाँ भी इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, ये कश्मीर भी इंशाअल्लाह आज़ाद हो जाए इंशाअल्लाह। ये बात तो आपकी बिल्कुल वजह है। बहुत यानी कि बहुत से लोग थे जिनको इस बात का इल्म नहीं था, तो आपकी गुफ्तगू से जो है ना इंशाअल्लाह इनको पता चल चुका है और गहरी सोच में ये पड़ गए हैं आपकी तमाम बातें सुनते हुए। जिनको नहीं भी पता था वो भी इससे फैज़ हासिल करेंगे। तो ये वाकई सही बात है कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आने वाला है कि ये कश्मीर भी आज़ाद होकर रहेगा और फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। और मुसलमानों को शुरू से फतह हासिल होती आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कलमा गो हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह हम ये जंग जो है ना ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और हक़ की फतह होगी और हक़ की फतह होगी। तो नाज़रीन, देखा ये बुखारी साहब की आपने बातें सुनी, तो उम्मीद है कि इसी तरह हम फिर आपसे मिलेंगे और गाहे बगाहे मिलते रहेंगे और इस किस्म की बातें आपको मिलती रहेंगी और अच्छी बातें जो हैं वो भी एक एकेडमी का रुतबा रखती हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे नई बात के साथ, नई मुलाकात के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, देखते रहिएगा बुलंदी टीवी नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।